Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about how to take cross product of unit vectors, then a dot product of unit vectors, and in last we will see how to solve problems based on vectors. So let us start with first point, cross product of unit vectors. For that, consider the unit vectors ax bar, ay bar and az bar. Then while finding the cross product of unit vectors, we have to refer this figure. So here the ax, ay and az are placed in anti-clockwise direction. Remember that when you go from first vector to second vector in the direction of arrow, then the result of cross product is the third unit vector. But if you go in opposite direction of arrow from first vector to second vector, then the result of cross product is the negative of third unit vector. So for example, let us see. Suppose we have to calculate here the cross product of ax bar and ay bar. Ax and ay. That is ax bar cross ay bar. Here ax bar is the first unit vector and ay bar, this is the second unit vector. So while passing from this ax to ay, you are passing in the direction of arrow. So the result is third vector, which is nothing but az cap. Consider second example. Suppose we want the cross product of az cap into ay cap or az bar into ay bar. Then in this example, this az bar is the first vector and this ay bar is the second vector. So while passing from this az to ay bar, you are passing opposite to that of arrow, because the direction is anti-clockwise from ay to az, but here we have to calculate the cross product of this az and ay bar. So we have to here passing through the opposite of that arrow. Therefore the result is third vector, which is having negative sign. That means in this case the cross product of az cap into ay cap is nothing but third vector, which is equal to ax cap, but the direction is negative, that's why we have to take here minus of ax cap. So let us see the different possible cross products. If you want to calculate here the cross product of same unit vector like ax cap cross ax cap or ay cap cross ay cap or az cap cross az cap, then it is always considered as a 0. The cross product of same unit vector is always 0. Then in second case, we can see the cross product of ax and ay. So ultimately the result will be the third vector, which is nothing but az cap, and here we will go with respect to the direction of anti-clockwise direction. So here the resultant vector is az cap. Let us see next example, cross product of ay and ax. So refer this figure again. This is ay cap and this is az cap. If we take the cross product of ay cap into az cap, then the resultant vector is ax cap, which is having positive sign. But if you want to take here the cross product of ay cap into ax cap, then जो आपका डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ये डायरेक्शन आपका ऑपोजिट हो जाएगा टू दैट ऑफ गिवन एरो. सो दैट्स वाई द रिजल्टेंट वेक्टर इज az कैप, बट जो माइनस आपका साइन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू दिस ay कैप क्रॉस ax कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ az कैप. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ay कैप क्रॉस ऑफ az कैप. तो ये डायरेक्शन आपका एज पर दी जो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ही है. तो हम डायरेक्टली ax कैप जो आपका थर्ड वेक्टर है उसे यहाँ पे ले सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है az कैप क्रॉस ay कैप. तो यहाँ पे आप देख सकते हो z एंड y के साथ. सो दिस इज z एंड दिस इज y, और जो आपका डायरेक्शन है यहाँ पे आपको चेंज करना होगा. तो ये आपका थर्ड वेक्टर जो रहेगा ये आपका आंसर रहेगा, बट उसका जो साइन है वो आपका निगेटिव हो जाएगा. सो दैट्स वाई इफ वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ az कैप क्रॉस ay कैप, then we have to take here minus of ax cap.
Then in last condition, cross product of AZ cap cross AX cap, Z and X. So here we can see again in that figure Z and X. तो उसके बाद अल्टीमेटली इसका आंसर आपका थर्ड वेक्टर रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ दिस सर्कल है ये. तो इसके लिए आपको इसका साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ वो प्लस ए वाई कैप आएगा यहाँ पे. इन सेकेंड वेक्टर ए एक्स कैप क्रॉस ए जेड कैप विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई कैप. सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स. In a similar way, there are certain properties of dot product also. So let us see how to take dot product of unit vectors. So if you want to take here the dot product of same unit vector, then it is always considered as a 1. जो हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, तो आप जब भी सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये वैल्यू आपका 0 आएगा. लेकिन आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो सेम यूनिट वेक्टर का तो ये आपका 1 आ जाएगा. दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स into ax bar is equal to ay bar dot ay bar is equal to az bar dot az bar is equal to ये आएगा आपका 1. दूसरा कंडीशन है इफ वी टेक हियर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर लाइक x का y के साथ, अगेन x का z के साथ, y का x के साथ, z का x के साथ, तो ये कभी भी 0 आएगा. यानी जब भी आप सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 1 आएगा, और अगर वो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 आएगा. क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 आएगा, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट वेक्टर का लेते हो तो वो थर्ड वेक्टर आएगा कभी भी. और आपको वहाँ पे डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा. अगर वो अकॉर्डिंग जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने रेफर किया था सर्कल के लिए वो हिसाब से प्रेजेंट है तो वो आपका पॉजिटिव थर्ड वेक्टर रहेगा. और अगर वो हिसाब से डायरेक्शन नहीं है, आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है एरो, तो वहाँ पे वो केस में आपका जो थर्ड वेक्टर है वो निगेटिव में आ जाएगा. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. सो देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर 3 वेक्टर्स a 3, 2, -1, b having coordinates 1, 3, 5 and c having coordinates 4, -2, 3. Find out first parameter AB bar plus AB bar, AB bar plus AC bar, and second AB bar minus of AC bar. So my dear students, as we have discussed already that we can add the two vector, we can subtract the two vectors, or we can multiply the two vector also. ओके, सो यहाँ पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है ऑपरेशन, और उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर दिया है दैट इज AB बार प्लस AC बार आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद ये दोनों को ऐड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हियर वेक्टर AB बार, देन सेकेंड AC बार. सो दिस AB बार इज नथिंग बट व्हाट, विच विल शोज दैट A इज नथिंग बट स्टार्टिंग पॉइंट एंड B इज नथिंग बट एंडिंग पॉइंट. और AB बार वेक्टर मुझे कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो मैं कभी भी एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे करूंगी. दैट इज दिस AB बार इज नथिंग बट B बार माइनस ऑफ A बार. अगर मैं उसको A बार माइनस ऑफ B बार यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी तो ये गलत हो जाएगा. तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वंस वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, then we can calculate here the vector that is nothing but ending point minus starting point. तो जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे AB बार इज इक्वल टू, ये आएगा आपका B बार माइनस ऑफ A बार. तो B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और A के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है उसको. तो ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन, B बार x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे है 1 माइनस ऑफ 3 आएगा AX कैप, प्लस सेकेंड है पोजीशन y पोजीशन दिया है 3 माइनस ऑफ 2 AY कैप, प्लस z का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है माइनस ऑफ -1 AZ कैप. उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 1 - 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 AX कैप प्लस 3 माइनस ऑफ 2 प्लस AY कैप प्लस 5 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 AZ कैप. So this is the value of AB bar vector. In similar way, we can find out the value of AC bar also. So here again A is the starting point and C is the ending point. So here if you want to calculate the vector AC bar, then we have to take here C bar minus of A bar.
तो सी बार के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे पता है, तो ये आएगा आपका 4 माइनस ऑफ 3 AX कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट भी पता है -2 AY कैप एंड प्लस जेड कोऑर्डिनेट है इसका 3 -1 AZ कैप. So this will become 4 minus 3 is equal to 1 AX cap. Then minus 2 becomes minus of 4 AY cap plus 3 minus of minus 1 becomes 4 AZ cap. So this is the value of AC bar. In the next step, we have to just add AB bar and AC bar. So here write down first the value of AB bar plus second write down the value of AC bar. And after that we have to perform here addition operation. So we have to add this -2 plus 1 which is equal to minus of 1 AX bar. Then second plus 1 minus of 4 which is equal to minus of 3 AY cap. Then plus 6 plus 4 is equal to plus 10 of AZ cap. Okay, so this is our first parameter. तो सेकंड यहाँ पे आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना है AB बार माइनस ऑफ AC बार. यहाँ पे हमने दो जो हमारे पास वेक्टर प्रेजेंट थे उसको ऐड किया था, तो यहाँ पे आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो AB बार का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा और ये आएगा आपका माइनस ऑफ AC बार एज इट इज़. उसके बाद ये दोनों क्वांटिटीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा -2 -1 इज इक्वल टू -3x कैप प्लस 1 -4 is equal to this 1 -4 becomes plus 5 AY cap and last आएगा आपका 6 -4 is equal to 2 AZ cap. So this is the value of AB bar minus of AC bar and this is for AB bar. So remember here one point, जब भी आपको वेक्टर कैलकुलेट करना होता है तो उसमें आप कभी भी कैप और बार का यूज़ करते हो. तो अगर आप यहाँ पे -3 AX कैप लिखा है मैंने, तो आप इसकी जगह AX बार भी लिख सकते हो. लाइक ये आएगा आपका -3 AX बार प्लस 5 AY बार प्लस 2 AZ बार, और ये आप कैप के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो. दोनों में से आप कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. हियर अगेन 2 वेक्टर्स आर देयर. सो द फर्स्ट वेक्टर इज A बार विच इज इक्वल टू 3 AX बार माइनस ऑफ 2 AY bar plus of 4 AZ bar and B bar is equal to 2 AX bar plus AY bar minus of 3 AZ bar. Find out first parameter A bar dot B bar, second A bar cross B bar and third B bar cross A bar, and prove that the cross product of A bar B bar is equal to minus of B bar cross A bar. तो 3 कंडीशन आपको यहाँ पे दिए हैं, पैरामीटर्स दिए हैं, उनको आपको कैलकुलेट करना है, और 2 गिवन वेक्टर्स दिए हैं दैट इज़ A बार एंड B बार. तो पहला वेक्टर आपको यहाँ पे दिया है A बार डॉट B बार, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है. तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 3 AX बार माइनस ऑफ 2 AY बार प्लस 4 AZ बार इंटू B वाला टर्म आएगा आपका 2 AX बार प्लस AY बार माइनस ऑफ 3 AZ बार. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दी सेम कोऑर्डिनेट्स, लाइक x का x के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है. तो ये आएगा आपका 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. सेकेंड y पैरामीटर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये आएगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. और थर्ड कोऑर्डिनेट आपको दिया है +4 AZ कैप और यहाँ पे दिया है -3. सो दिस विल बिकम 4 इंटू -3 दैट इज -12. सो दिस विल बिकम 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 - 12 ये आएगा आपका -8. तो फर्स्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. इन अ सेकेंड पैरामीटर वी हैव टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस A बार इंटू B बार. तो उसके लिए आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ये, जिसमें आपके 3 वैल्यूज़ 3/3 का मैट्रिक्स प्रेजेंट है. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आपको दिया है x, y एंड z का, और उसके बाद जितने भी वेक्टर्स दिए हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो यहाँ पे 2 वेक्टर मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे आएगा मेरा फर्स्ट रो AX, AY एंड AZ के लिए, एंड सेकंड रो इज फॉर BX, BY एंड BZ. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A बार एंड B बार. तो A बार के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे पता है, तो ये है हमारे पास 3 -2 एंड 4. तो सिंपली मैंने यही इसको यहाँ पे लिखा है 3 - 2 एंड 4. इन द सेकेंड केस
जो बी बार वेक्टर है उनके वैल्यूज़ भी हमको पता है, तो ये आएगा आपका 2, 1 एंड -3. सो दिस विल बिकम 2, 1 एंड -3. तो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे अभी लिख लिया है, उसको आपको सॉल्व करना है. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस गिवन मैट्रिक्स. So write down first left hand side as it is, that is a bar cross b bar. Then after that here first parameter आपको यहाँ पे दिया है ax cap, तो ये हम लिखेंगे पहले ax cap as it is. उसके बाद जो ax bar होता है इसका रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू आपको यहाँ पे छोड़ देना है, और जो हमारे रिमेनिंग यहाँ पे जो वैल्यूज़ बचे हैं उनको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. यानी पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे, दैट इज़ 3 इंटू 2 -3 इंटू माइनस ऑफ 2, दिस विल बिकम +6. उसके बाद दिस माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 4 इंटू 1, ये आएगा आपका 6 माइनस ऑफ 4. नेक्स्ट पैरामीटर है ए वाई कैप. तो जो ए वाई कैप आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल रो हम कैंसिल करेंगे, वर्टिकल भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे हमारे ये और ये रो, और यहाँ पे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आएगा आपका 3 इंटू माइनस ऑफ 3, ये आएगा माइनस ऑफ 9, माइनस ऑफ दिस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. ओके, देन z वाले के साथ भी वैसे ही करना है आपको. ये z के टर्म जहाँ पे भी प्रेजेंट है आपका रो एंड कॉलम वैल्यू, उसे हम कैंसिल कर देंगे, और ये हमारे पास अभी मैट्रिक्स बचा है, तो यहाँ पे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. पहला 3 इंटू 1, ये आएगा आपका 3, माइनस ऑफ दिस 2 इंटू माइनस ऑफ 2 बिकम्स माइनस ऑफ 4. तो यहाँ पे हमने ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट दिया था हमको, उसको हमने सॉल्व कर लिया है. अब सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 6 माइनस 4, दिस विल बिकम 2ax कैप. देन दिस -9 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17, एंड दिस माइनस ऑफ 17 इंटू माइनस ऑफ ए वाई कैप, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 17ay कैप प्लस 3 minus of -4 is equal to 7az cap. Okay, so this is the value of a bar cross of b bar. तो ये होता है आपका सेकंड पैरामीटर जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है. जो थर्ड पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है वो है b बार क्रॉस a बार. तो सिमिलर वे में हमने जैसे अभी सेकंड कंडीशन में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे. पहले हम x, ay, az कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, उसके बाद जो बी एक्स, बी वाई, बी जेड के वैल्यूज आएंगे, और उसके बाद ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड कोऑर्डिनेट्स. सो इन ए नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट जस्ट वैल्यूज ऑफ बी बार एंड ए बार. ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड एज इट इज रहेगा आपका. बी बार वैल्यू आपको गिवन है 2, 1, -3, एंड ए बार इज ऑल्सो गिवन विच इज हैविंग वैल्यू 3, -2, 4. तो यहाँ पे हम सिमिलर वे में जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था. तो दिस विल बिकम्स ए एक्स कैप एज इट इज़, ये रो एंड इसका कॉलम वैल्यू जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बिकम क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 इंटू 4, 4 माइनस ऑफ -3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 6. देन माइनस ऑफ, तो जो भी आपका मिडल टर्म होता है उसको हम कभी भी यहाँ पे माइनस ही कंसिडर करते हैं. तो ये आएगा आपका ये रो वैल्यू और ये इसका कॉलम वैल्यू चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 4 इंटू 2 8, माइनस ऑफ 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 9, और सेकंड आएगा प्लस ए जेड कैप, ये और ये इसका वैल्यू चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3. इन ए नेक्स्ट स्टेप दिस 4 माइनस 6 बिकम्स माइनस ऑफ 2ax कैप, देन 8 माइनस ऑफ -9 माइनस ऑफ 17ay कैप, ये आएगा आपका 8 माइनस ऑफ -9 इज इक्वल टू 17ay, एंड दिस 17 प्लस 17ay इज मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 17ay कैप प्लस -4 -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7az कैप. सो इफ यू ऑब्जर्व्ड द सेकेंड पैरामीटर दैट इज a बार क्रॉस b बार और a बार माइनस b बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू है वो सेम ही आया है दोनों केस में, सिर्फ उसके जो साइन है वो चेंज हो चुके हैं. यानी आपको यहाँ पे प्रूव करना है इन थर्ड केस a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बार क्रॉस a बार. सो हियर द वैल्यू ऑफ a बार क्रॉस b बार इज 2ax
cap plus 17ay cap plus 7az cap, and the value of b bar cross a bar is minus of 2ax cap minus of 17ay cap minus 7az cap. वैल्यू दोनों भी सेम है, सिर्फ इनका जो साइन है यहाँ पे ये निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है. सो वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन with second equation. This is your first condition and this is the second equation. If we compare the first and second equation, then we can write here a bar cross b bar is equal to minus of b bar cross a bar. Hence it is proof. So this is one of the property of vector. So if you want to take here cross product of this a bar and b bar, और आप b bar into a bar का लोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम ही आएगा, लेकिन जो आपका साइन है वो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन. आई होप यू विल लाइक एंड एंजॉय. अगर आपके कुछ डाउट या सजेशंस होते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो वी विल स्टॉप हियर विथ मोटिवेशनल कोट. टुडेज मोटिवेशनल कोट फॉर यू इज डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, challenge your limits. Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.